everyone, and welcome you all to this another success story session जहाँ पर हमारे साथ we have a very special guest ऋषेंद्र जी जिन्होंने recently JIB का के जो चारों पेपर्स है उन्हें क्लियर किया है. सो विल बी डिस्कसिंग कि कैसे इन्होंने ये जो फियाट है उसे अचीव किया एंड व्हाट वर द वेरियस चैलेंजेस दैट ही had to face. First of all, congratulations, Rishendra ji, on this great success of yours, and I hope आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा. You can just express and tell all the bankers and aspirants how are you feeling right now. Thank you, Surendra. This was my first attempt, and this felt like something which I have achieved in the first attempt itself. So I'm very happy, and also thankful to the team of EduTap and all other mentors, educators who have been relentlessly making videos for aspirants like us. So definitely this time the all the four papers were surprisingly on a different they were made on a different track. So tracking them in the was definitely gave me a very goosebumps when I got to know that all the four exams have been cleared. So I'm very much thankful to all the educators and mentors. Thank you so much. And yes, इस बार पेपर भी डिफिकल्ट थे. आई एंड IFS थोड़ा इजियर साइड पे था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रिमेनिंग थ्री पेपर्स वर वेरी वेरी डिफिकल्ट इज व्हाट ऑल द बैंकर्स हैव सेड एंड वी हैव आल्सो सीन. तो दैट इज़ वाई सेट इट इज़ अ बिग माइलस्टोन जो ये क्लियर चारों जो है एक साथ एक ही अटेम्प्ट में, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो ग्रेट टू नो दैट, एंड आई होप आपके जो जर्नी है उसको समझकर बाकी जो बैंकर्स हैं दे विल ऑल्सो गेट सम इंसाइट्स कि जनरली देर इज़ अ थॉट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये हो ही नहीं सकता, चारों क्लियर हो ही नहीं सकते एक साथ. तो you are one such person from whom we can learn a whole lot. So beginning this conversation, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अगर अपना बैंकिंग का बैकग्राउंड बता पाओ कि where you are posted presently, when did you join bank and how did you start thinking about JIB, कब आपने attempt दिया, कैसे ये सब शुरू हुआ? Okay, so I'm working in Bank of Maharashtra as a Scale 2 manager, and recently I have been posted to head office Pune. So with an experience of 1.5 years, as soon as I joined the banking, especially in the head office. I soon started realizing that one must know about all the banking operations. So banking is a sound knowledge of banking is very much needed in these days, these times. It is very much needed, because if you are working for the nationalized bank, you need to know about everything. All round knowledge is important, so as to work properly in the banking sector. So as soon as I joined the bank, I had this aim that I must know all the operations, whatever it is happening at the ground level. I must have a thorough knowledge about it. So then after 6 months passed on, I thought that I will be targeting this exam. So in the month of May, I appeared for this exam. And if you ask me how I started preparing, then as soon as I did my registration, within a week or so, I started preparing in bits and pieces about this exam. So 2 months before the actual exam, in the month of in the month of March itself, I started preparing for these exams, especially two papers which were on the same weekend, like on Saturday and Sunday, principles and practices in banking, PPB AFM. and AFM, because those two papers were just one after the another. So it was, my task was like my focus was on these two papers, because rest two papers I was getting sufficient time. So first I targeted these two papers. Then
when I realized that I have covered almost most of the part in these two exams, in these two papers, PPB and AFM, then I started 1 month before the exam. I started on remaining two papers, Indian economy and Indian financial system. I know about it. So then retail management and retail banking and wealth management, I started focusing on that. So before the exam, I had a complete um, knowledge about the syllabus, what is expected out of an aspirant. So this helped me a lot. But one must know about the syllabus. So once I got to know about the syllabus and what are the areas which are important. I was in a situation there where I started preparing from the other online sources like EduTap. So your PYQs sessions have helped a lot, and marathon sessions, especially before the exams, they help you in revision and the covering the important topics, and the numerical based videos, because this year, like in three papers, PPB, AFM, and retail banking, all these three case studies were asked, and they were crafted in such a way that you know, just not a superficial knowledge was not, you know, something which was not sufficient. So you need to have a thorough knowledge about the subject, about the concepts. So in these matters, YouTube videos helped a lot, because they were to the point, they were concise, well structured, and that makes a difference, because the people like us, aspirants like us who are working, they get very less time. So whatever we are studying, we have to make sure that it is to the point. So I think that what make the difference. ग्रेट ग्रेट। तो एज यू आर मेंशनिंग पहले भी कि आपने जो मटेरियल आईआईबीएफ प्रोवाइड करता है उसको आपने ऑप्ट किया था सबसे पहले। तो जनरली ई लर्निंग का मटेरियल वाइल रजिस्टरिंग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो यू ऑप्टेड फॉर दैट एंड दैट बिकेम द बेस ऑफ योर प्रिपरेशन एज यू मेंशनड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जैसे यूट्यूब पे आपने मेंशन किया कि एडोटैप के वीडियोस और आपने मैराथन सेशंस ये सब देखें विच एक्चुअली एनहांस्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह रिवाइज करने में, उस सब में आपको काफ़ी हेल्प मिली। तो इट इज़ ग्रेट टू नो बिकॉज दिस इज समथिंग अवे फ्रॉम व्हाट पीपल डू जनरली। वो ई लर्निंग वाला हम खुद भी कहते हैं कि उसको मत करना ऑप्ट। तो बट या इट इज़ ग्रेट टू नो कि यू ट्रस्टेड दैट एंड यू कैन एक्चुअली टेल एवरीवन, मतलब आप बता सकते हैं इफ़ यू वांट कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद दैट ई लर्निंग पैकेज, so that if somebody wants in future to have that, तो क्या वो उस पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं या फिर दे हैव टू रेफर मोर? आई थिंक एनी वन सोर्स प्रिपरेशन का जो है वो दैट विल नॉट सफाइस, बिकॉज अभी द वे द पेपर इज डिजाइंड, you have to have multiple resources once you have completed the basic. So for me, the basic source was, I thought that I should be taking up this e-learning material, because that will help me know about the syllabus. See, in cracking any exam, syllabus, one aspirant must know about the syllabus, what is the syllabus, and whether you will be able to cover. And as per the syllabus, you design your strategy, like how many hours and how I have to study, and how I have to cover, and what is going to be my pace, and how much time I should devote to each and every subject. सो आईबीएफ का मटेरियल जो था, ई लर्निंग मटेरियल, उससे मुझे ये आइडिया लगा कि मेरा सिलेबस कितना है, कितना स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बाद में किया जा सकता है, क्या पहले किया जा सकता है। तो उन टॉपिक्स के बारे में मुझे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैंने डेवलप कर लिया, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आ गई। फिर उसके बाद जब इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर अप करने के बाद, आई थॉट दैट यस, जो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको कवर अप किया जा सकता है। देन एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें कि मुझे रियलाइज हुआ कि न्यूमेरिकल्स आर नॉट बीइंग प्रॉपरली कवर्ड इन दैट ई लर्निंग मटेरियल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड है, दैट इज बीइंग टोल्ड ऑन द
YouTube videos, like your videos, your EduTab videos. In that it is properly explained. If there is any shortcut, तो वो उसमें बता देते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, कौन से लेस इंपॉर्टेंट, कौन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। तो वो एक Yes. आइडिया होना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को, क्योंकि इस बार को देखा गया 9 to 10 numericals were there in my shift in AFM, which played a very important role because this time I think PPB and AFM had numericals as well. Hmm. So जो ये न्यूमेरिकल का पार्ट रहता है 20 to 25 मार्क्स वाला, दैट प्लेज an important role. So if you are asking about the IBF का material, so yes, there was less focus on numericals. For numericals and other important concepts, PYQs, like PYQs and important areas, MCQs from important areas, important topics, that I covered from the YouTube lectures. ओके ग्रेट। तो बेस आपका वो मटेरियल बना एंड देन यूट्यूब लेक्चर्स से आपने बाकी जो उस पर बिल्डअप किया, दैट एक्चुअली हेल्प यू। तो दैट इज़ ग्रेट। तो पीपल हु आर वाचिंग, आप देख सकते कि जो IBF का मटेरियल, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बुक से आप पढ़ सकते, तो इट इज़ अप टू यू। बट थोड़ा और जो है इम्पोर्टेंट कौन सा है एंड कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, लाइक प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड जानने से रिलेटेड बाकी सोर्सेज का आप थोड़ा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो selectively you can go through these sources, so it is really great to know. And one thing that I would and all the aspirants and bankers would like to ask you is आपका बैकग्राउंड जो है वो किस में था? बिकॉज कॉमर्स बैकग्राउंड इज समथिंग विच इज प्री रिक्विसाइट, इज सम, ये अब तो मिथ बन गया बिकॉज एवरीबडी इज एबल टू क्लियर। सो इफ यू कुड ऑल्सो टेल अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, it would help. Sure, Surendra. Actually, I want to tell all the people who are fellow aspirants as well as people who are watching that my background is from IT. I have done BTech, Bachelor of Technology in Electronics and Communication, and I have no connection with commerce or accountancy. I have never studied these subjects in my life. So for me, this was something that I had to rely on all the sources, all the possible sources, which gave me proper clarity about the topics, which gave me which told me about the what is important and what is not important, because you cannot study everything from in a syllabus. You have to be very selective in your strategy, and you must know what are the important areas, and there where the experience of educators helped me a lot, mentors and educators, because IBF is only providing the content, but on the top of that you need experience and guidance. So that is where that is what helped me, and that is what made a difference in my preparation. ग्रेट टू नो। यस। तो बेसिकली इस तरीके से जो है ऋषेन जी ने ये प्रिपरेशन की एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका, आई होप आप लोग सुन रहे हैं कि कॉमर्स का नहीं है तो इट इज़ अ मिथ कि यू डेफिनेटली हैव टू हैव द कॉमर्स बैकग्राउंड। एंड ऑब्वियसली इवन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही कर पाते हैं, ऐसी चीज़ें भी काफ़ी एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स हमें कहते हैं। तो विशेंद्र जी इज़ ब्रेकिंग दैट मिथ राइट नाउ फॉर यू कि नहीं है ऐसा। इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो यू कैन क्लियर ऑल द 4 पेपर्स एंड जॉब आप जो है क्लियर कर सकते हैं इवन दो आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। And one more interesting thing that we would like to ask you is if you would like to mention your marks in all the 4 papers, and कौन सा पेपर देते हो आपको लगा कि चलो यार चलो ये तो बड़ा अच्छा है, मज़ा आ रहा है, तो you can tell about that. सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया है फर्स्ट पेपर में, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें मेरे 68 मार्क्स आए। सो दैट वाज समथिंग, उस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद मुझे लगा कि यस, दिस इज अ स्टार्टिंग, एंड ये मतलब दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी, आई होप। देन सेकेंड पेपर था प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस इन बैंकिंग, PPB, उसमें मेरे 62 मार्क्स आए। Then was the most feared exam AFM, जिसमें कि मेरे 49 मार्क्स है, because that was something which I feared a lot. Accountancy I never studied, मैंने कभी नहीं पढ़ा accountancy अपनी लाइफ में। एंड फोर्थ पेपर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट मेरे 58 मार्क्स है।
सो ओके। दिस ये पूरा एक था जिसमें कि ओनली इन एफएम दैट वाज समवेयर अराउंड 49, बट दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो दैट डिडंट मैटर टू मी. ग्रेट ग्रेट, यस। तो मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं आपके बिकॉज पीपल हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर सम ऑफ द सब्जेक्ट, लाइक पीपीबी रह गया, एफ एम आरबीडब्ल्यू में ऐसे। तो मार्क्स आर वेरी गुड एंड या, तो हम जो स्ट्रैटेजी ऋषेन जी ने अपनाई है वो आप भी अपना सकते हैं। यू कैन इवन प्रिपेयर फ्रॉम द आईबीएफ मटेरियल एंड द थिंग इज कि यू टॉप इट अप विद द अदर थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट आपने ये पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, बिंग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, ऑल ऑफ दोस थिंग्स डिड नॉट मैटर। तो what would you say, what worked for you at the end of the day totally, and क्या एडवाइस आप देंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जल्दी से जल्दी इंक्रीमेंट मिले, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेना चारों पेपर्स के लिए, would you give some advice to all the aspirants and bankers? जी बिल्कुल. मैं एक अपने जो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी ट्राई कर रहे हैं इसको क्रैक करने के लिए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, या जो कुछ पेपर्स कर पाएँ, कुछ पेपर्स नहीं कर पाएँ, तो मैं उनको यही एक एडवाइस दूँगा कि सबसे पहली चीज़, सबसे अहम चीज़ है कि आप यू स्टार्ट अर्ली. As early as you start, that will give you to rectify your weak areas, your whatever mistakes you are committing, जो भी आपको लग रहा है बाद में कि दिस एरिया, ये एरिया नहीं हो पाया, ये एरिया मैंने अच्छे से कवर किया है, तो जो वीकर एरियाज हैं उनको आप ज़्यादा समय दे पाएंगे, और जो एरियाज जो जो भी टॉपिक्स है वो छूट गए हैं उनको भी कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर बनाया गया था उसमें दे हैव इंश्योर्ड कि पूरे सिलेबस से, जो भी पेपर का सिलेबस है, सभी सिलेबस के सभी टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ पूछा जाए, या एक क्वेश्चंस वर डिजाइंड इन अ वे कि वन क्वेश्चन इन विद इन अ क्वेश्चन देयर वर मल्टीपल कांसेप्ट्स Thanks. जो कि एक दूसरे से लिंक्ड थे. तो मैं पहली एडवाइस यही दूंगा कि आप जल्दी स्टार्ट करें, एटलीस्ट 2 months बिफोर द एग्जाम, क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि यू द प्रिपरेशन गोज ऑफ द ट्रैक. तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे पहले सबसे यू स्टार्ट अर्ली. सेकेंड, यू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द सिलेबस. सिलेबस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. वो जब सिलेबस आप पढ़ते हैं, आप जब रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि मेरा व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इम्पॉर्टेंट. लेस इम्पॉर्टेंट का मतलब यू डोंट हैव टू इग्नोर दैट टॉपिक, यू हैव टू focus on that, but after covering the important topics. So ये covering the syllabus is important. Then first of all, for numericals you cannot, I would say that आप ये एग्जाम, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं एफएम और पीपीबी जिसमें कि आपको थ्योरी भी आना चाहिए और थ्योरी का एप्लीकेशन भी यू मस्ट नो, स्पेशली न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स इन माय पेपर, माय एग्जाम एएफएम, that time around 10 to 12 numericals were there. So numericals you cannot ignore. Numericals are very important for this GIB exam. Fourth is to have at least 1 or 2 hour daily routine, so that you can at least uh, cover at least some part of the topics, some part of the syllabus every day. So consistency is important, routine is important, syllabus and important areas like numericals, you and case studies. Yes, case studies is also equally important, क्योंकि इस बार सभी पेपर्स में केस स्टडीज को भी पूछा गया है. So and that also was an important part of the question paper. So case studies, numericals and theory and its application, these three things should be taken care of. And at the last, you have to be relentless. You don't have to stop. You have to be consistent and you have to be disciplined. You have to utilize, even if you are getting half an hour, अगर आपको आधा घंटा भी मिल रहा है या लंच ब्रेक मिल रहा है, लंच ब्रेक में भी अगर समय मिल रहा है, तो you utilize that thing. And आपको जब वीकेंड्स मिल रहा है, then over the weekend you can have a long stretch of study. उसमें that will help a lot in clearing these exams. But you cannot just rely on the notes. मेरे केस में मैंने कोई भी बुक नहीं खरीदी. I would like to mention it. I didn't purchase any book. I solely relied on the basic material provided by the IIBF, and remaining portion I
focused only on the marathon videos, PYQs, previous year questions, and the important topics and numericals from EduTap. Yes. So that was something which which was a game changer for me. That worked for me actually. ओके ग्रेट। तो जैसे टाइम की भी आपने बात की कि जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू बी रिलेंटलेस। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग कि कंटिन्यूसली एफर्ट देना है, कंसिस्टेंटली आपको प्रिपरेशन करना है। किसी भी दिन छूट जाता है तो फिर वो रूटीन रह जाता है। ऑल्दो ऐसे दिन आएंगे तो स्टार्ट अर्ली। आई थिंक दिस आर द मेन पॉइंट्स दैट यू आर ट्राइंग टू टेल, एंड ऑल्सो टॉप अप करने का जो आप बता रहे थे दैट इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, एंड एज यू मेंशन के EduTap हेल्प्ड यू इन दैट। तो इट इज़ अ रियली वंडरफुल स्ट्रैटेजी, एंड जो भी आप कह रहे हैं मैं हर बार सोच रहा हूँ, सुन रहे हैं ना सारे बिकॉज वी कीप टेलिंग टू एवरीवन कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले अर्ली स्टार्ट करिए एंड कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़िए। बट स्टिल लास्ट के 1-2 हफ्ते में फिर आके यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, ऐसे चलता है। तो वो चीज़ हमें इस बार थोड़ी अवॉइड करनी है। आपने देख लिया पेपर कैसा आया था, एंड उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा पहले से आपको प्रिपरेशन करना रहेगा। एंड एज ऋषेन जी सेइंग इसकी आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ग्रेट। तो वेन एवर वी अचीव समथिंग बिग तो हमें पता होता है कि पीछे हमने इतने पापड़ बेले हैं। तो there are many challenges that you must have gone through. So what were the major challenges that you faced and how did you overcome those while preparing? फ्रैंकली मेरी जो प्रिपरेशन थी, आई स्टार्टेड अर्ली, तो मेरे पास एक एडवांटेज था दैट आई हैव स्टार्टेड अर्ली, एंड आई मोस्ट ऑफ द जो ये पीपीबी एंड एएफएम पे मैंने काफ़ी फोकस शुरुआत से था, बिकॉज इन दोनों पेपर्स के लिए ज़्यादा समय नहीं था, और ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इनको ही पहले फोकस किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि फॉर अ वीक आई वॉज कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। मेरा मेरा ऑलमोस्ट जो भी प्रिपरेशन था, इट वॉज ऑलमोस्ट केम टू अ स्टॉप। बट व्हेन यू सी दैट कि अभी काफ़ी दिनों से आपका प्रिपरेशन जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आप ट्रैक पे आपका प्रोग्रेस नहीं है, बिकॉज दिस इज द मेजर चैलेंज। हम सब स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर लगता है कि बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड अभी वी हैव अ सफिशिएंट टाइम, सो वी कैन पोस्टपोन थिंग्स, एंड बाद में हम पढ़ाई कर लेंगे, बाद में हम कवर अप कर लेंगे। पर वही एक समय होता है जिसमें कि आपको खुद को समझाना है कि नहीं, दिस इज व्हाट इज माई प्रायोरिटी, द एग्जाम इज माई प्रायोरिटी, एंड बाकी की चीज़ें बाद में हो जाएंगी। तो अभी आई शुड फोकस ओनली ऑन दिस एग्जाम, एंड वंस यू आर ऑफ द ट्रैक देन आपको खुद को समझाना है और वापस ट्रैक पे लाना। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग विच आई फाउंड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। So there was, I started early, 2 months before, but there was a time when my preparation was completely off the track. Then at that point of time, bringing myself back on the mainstream, back on the track was a challenging thing for me. And which I soon realized that nahi, बाकी चीजें बाद में हो सकती हैं, and this is my priority and I should focus on my exam. Okay, so also I would like to ask कि how did you bring yourself back, because ये हमेशा ऑफ ट्रैक जाना तो हमारे लिए बहुत इजी होता है बट वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? वाज इट अ चेंज ऑफ माइंडसेट या फिर आपने कुछ और भी चेंजेस किए, पीपल से बात की, क्या किसी ने आपको हेल्प की, कैसे किया ये? एक्चुअली काफ़ी बार ऐसा हुआ कि व्हेन आई रियलाइज्ड दैट मेरा जो माइंडसेट है दैट इज़ नॉट इन प्रॉपरली अलाइंड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम, जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उससे अलाइन नहीं है। तो उस टाइम पे यस, यू टॉक टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट, एंड you have to keep telling your mind that what is important at this point of time, because see, after the exam you can do whatever you want, but at this point of time before the exam, what really matters is you stick to the routine and you stick to the to your task, small tasks, and I have divided my entire preparation in small milestones. तो वो एक छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करना एंड देन अपने आप को रिवॉर्ड करना छोटी छोटी चीज़ों से, आई थिंक that is something which keeps your interest in the preparation. And also the talking to the people, talking to the mentors is very important also,
like my seniors which have given the who has given the exam, उन्होंने काफी मदद किया that you have to be there will come up point will come where you will feel that this thing can be postponed, but no, कई लोगों ने ये भी बोला कि दो पेपर अभी कर लो, दो पेपर बाद में कर लेना, लाइक दिस ऑल्सो सजेशंस केम, बट आई थॉट दैट why to waste time and why not to clear all the papers in one shot, because that would save my efforts and that would save a lot of time for me which I can focus on other devote to other tasks. तो कहीं ना कहीं लोगों से बात करिए और लोगों से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इनपुट नहीं देंगे, आप अपने ब्रेन को इनपुट नहीं देंगे, तब तक कि आप उससे ब्रेन से कोई भी चीज़, कोई भी काम करवा नहीं सकते हैं। तो आई थिंक माइंडसेट को समझना, अपनी पैटर्न को, हैबिट्स को, पैटर्न्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes, overall also pushing yourself a little is required. एज एन है कि अपने कंफर्ट जोन में बैठ के चलो एक कर लेते हैं इस बार, अगला फिर अगली बार करेंगे। तो इट इज़ पॉसिबल दोस्तों कि चारों कंपोनेंट्स, चारों पेपर्स आप एक बार में क्लियर कर सकते हैं, दैट इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पॉसिबल है। रिशेन जी यहाँ पर इसी चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो प्लीज़ डू नॉट लिमिट योर सेल्फ। एंड आई थिंक रिसेन जी एकदम शाउटिंग इनका मैसेज है फ्रॉम हिज प्रिपरेशन जर्नी कि डोंट रिस्ट्रेन योर सेल्फ, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, प्लीज़ गो अहेड एंड चारों पेपर्स को एक ही बार में क्लियर करने का पूरा आपको एफर्ट लगाना चाहिए डेफिनेटली, राइट। तो इट वाज रियली ग्रेट एंड टॉकिंग टू यू, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि would you like to mention anyone जिन्होंने आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प किया, anybody really helped you in this? आपने although थोड़ा mention किया है, if you would like to take the name या फिर describe करना चाहेंगे some mentors, seniors आपने कहा, family members, क्योंकि हमारे अकेले की achievement नहीं होती है, we obviously have many people who have taken up various tasks and उन्होंने आपको हेल्प किया, and also आपके जॉब की प्रोफाइल भी आई थिंक टाइम थोड़ा कम ही मिलता होगा आपको। So definitely, if you would like to mention anyone who helped you in Yes. this journey. I would like to mention two people who have played a very important role. First is my sister, elder sister, who has cleared this exam a few years back. So she was helping me, and also one of my friend. My sister name is Sweetie Verma, and my friend Rini Marotra. She helped me a lot, and in preparation, because she also was appearing for this exam. So there was a uh, support, and as well as a fellow aspirant is there, then there is a kind of Clear. a hand holding. Yes, peer. So when my peer is doing, and then I should also do better, right? Yes. And she also, I was able to crack the exam. Yes. Yes. Great to know, because obviously हमारे अकेले की नहीं होती है achievement, and yeah, people should be there with us who definitely help us. And it was great to talk to you. And finally, if you would like to give any message to all the aspirants, bankers who are preparing for this, although आपके जर्नी से हमें काफ़ी मैसेज एंड काफ़ी जो है इंस्पिरेशन ज़रूर मिली है, if you would also specifically give some like to give some message to all the aspirants, what would that be? सबसे पहले तो जिन एस्पिरेंट्स ने इस बार अटेम्प्ट किया एग्जाम, उनके लिए मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम, देन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर बाई चांस आपका कोई भी एक एग्जाम, कोई भी एक पेपर नहीं हुआ है, तो डोंट लूज होप। आप ट्राई करें, आप शुरुआत पहले करें, और पहले कोशिश करें कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें रह गई थी, जो लूप होल्स थे आपकी प्रीवियस एग्जाम के दौरान, उन लूप होल्स को पहले फिलअप करें। एंड येस, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, इफ बिकॉज द सेम थिंग विच आप करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। एंड अगर आपको वेल एजुकेटेड, गुड एडुकेटर्स अगर आपको मिले हैं, देन दे विल डेफिनेटली सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सो कहीं ना कहीं टेक द हेल्प, reach out to people, reach out to mentors, reach out to there are very good quality video lectures are available, especially for numericals and other important topics जो कि आप कवर करें। जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं बुक में, you go to video lectures, lot a lot of good content is there। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कंटेंट है, जैसे कि मैंने PYQs एंड important topics एंड मैराथन मैंने EduTab से कवर किए। सो यू कैन ऑल्सो refer those videos if you like it। Then
and the people who will be attempting next year probably, then for those I would like to tell that try clearing this exam in one shot, because that saves a lot of time. And also the threshold, the passing criteria is relaxed for, is lenient for the first timers, the guys who are going for the first attempt. तो बाकी एक बार अगर कोई पेपर रह जाता है तो दैट यू विल फील बैड दैट बाद में, पहले मैं अच्छे से तैयारी कर लेता तो आज मुझे वापस फिर से वही वही टॉपिक, वही सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना होती। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने आप को, अपने टाइम को थोड़ा-सा अच्छे से डिवोट करें, एक डिसिप्लिन रूटीन रखें, और जब लगे नई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं तो टेक अ पॉज़, strategize, and if needed, reach out to people for help. So I think that will help you a lot. And mentors and educators play a very important role when you feel lost. आपको जब नहीं समझ में आ रहा होता है आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, अगर आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स बेटर दैट यू go to the platforms and you reach out to the educators, mentors, and videos देखें आप, ज़्यादा से ज़्यादा videos देखें। videos से काफ़ी चीज़ें जो कि आप वीडियो से सीख सकते हैं, वो उतने कम टाइम में आप एक बुक से या एक स्टडी मटेरियल से वो चीज़ ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ फैक्ट, एक्सेप्ट इट, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटजाइज करें, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। एंड likewise I said I am not from the commerce background, so if I can do it, a person coming from the IT background, I can do it, then you too can do it. It's great to know that. तो थैंक यू सो मच रिशेन जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। योर एंटायर जर्नी इज़ एन इंस्पिरेशन। आपने नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो भी पहली बार में, चारों पेपर्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव क्लियर्ड, एंड दैट टू डिफ़िकल्ट पेपर्स थे, एंड योर मार्क्स आर ऑल्सो सेइंग अ होल लॉट कि कितनी मेहनत लगी है एक्चुअली। एंड रियली ग्रेट इंसाइट्स दैट यू हैव गिवन कि कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, what should be the various ways and steps and various decisions that we should take while preparing. So it was really great talking to you, and once again I would like to congratulate you from the entire team of EduTap, and all the best for the upcoming CAIB exam जो आप देंगे, and for all the other exams, and जो भी आप milestones achieve करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन, अपने जर्नी में इन बैंकिंग एंड एल्सवेयर। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड बहुत ही अच्छे से आप सक्सेसफुल रहे लाइफ में। दिस इज़ व्हाट वी विश फॉर यू। थैंक यू सो Thank you, मच sir. रिशेन। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thank you for having me, sir. I'm grateful to you for having me on this conversation interview. Thank you.